رفت باپت بند سپزمز تو 7 مارچ وت پہ شین تلت آمد رفت باپت بحال کرنے آمز تاہم 10 مارچ وت پہ دوبارہ شنمان ورست ین ست وت آمد رفت باپت بند سپزمز یم کن علاقن مز روزن والن لوکن کئیو رنگو مشکل ویترن پیوان یل زن انتظامیہ طرف وت پہ ٹریفک بحال کرنس حوالہ مشینری تو عملہ کم پہ لاگن آمد جموں کشمیر اسمبلی مز یت محکمہ تعلیم محکمہ صحت سماجی بہبود محکمہ کن گرانٹن حوالہ بحث سپد تو ممبرو طرف پنن علاقن ہند کئی مسلہ تہ وتلاونہ آئی تت وزیر موصوف سکینہ یتون تریشوین محکمن ہز بہتری حوالہ سرکار طرف تلنہ آمتن قدمن ہز تفصیل ایوانس برہ کن تھونس دوران ونمت زیت موجود حکومت طرف تعلیم ہند بنیادی ڈھانچہ مضبوط بناونس تو طالب علمن معیاری تعلیم فراہم کرنس حوالہ قدم تلنہ آمت تت محکمہ صحت بنیادی ڈھانچہ مضبوط بناونس حوالہ تہ کئی قدم تلنہ آمت یت زن لوکن بہتر طبی سہولیات آیتن تھونہ یل زن تمو سماجی بہبود محکمس حوالہ تفصیلات فراہم کران وون ز محکمہ کام کار مزید بہتر بناونس حوالہ تہ کئی قدم تلنہ آمت. I am thankful to honorable members who have spoken about the various aspects of school education, higher education, health and medical education and social welfare. The way they have highlighted the overall challenges in these sectors and the constituency-wise issues related to these sectors is really appreciable. Their suggestions about these sectors will definitely guide us in addressing the challenges and also improve where required. School education, Jammu and Kashmir has a distinct of having free education up to university level. There is a network of 18,724 government schools in which 13,84,000 students are enrolled. Besides, there are 15,517 private schools as well. This network of schools has helped Jammu and Kashmir to achieve literacy rate of 77.3%, which is very close to national literacy rate of 77.70%. In order to extend the benefits of quality education to the people of Jammu and Kashmir, a number of initiatives have been taken which includes infrastructure, building human resources, development, pre-primary school, KGBS and girls hostels as well. Under UT Capex, Samagra an amount of rupees 739 crores has been approved for infrastructure development which includes new buildings, additional school rooms, etc. In order to address the need for having suitable accommodation in government schools, additional classrooms are planned in 545. High and higher secondaries also besides upgradation of infrastructure in various schools. In addition to this, 150 science computer labs are planned to be constructed in next financial year along with 100 school buildings for rented schools. During the current budget, a provision of 600 ICT labs, 2,000 smart classrooms and 1,500 ATLS has been kept to encourage innovation and scientific temperament among the students. Similarly, 15,000 pre-primary schools are to be established for the benefit of targeted enrollment of 1,80,000 children. In order to encourage mother tongue, various initiatives are being taken at the primary and upper primary levels. For direct benefit of the students, various facilities like textbooks, free uniform, midday meals and scholarships are being offered. This kind of facilities has helped the department in attracting more enrollment besides reducing the dropout. Special enrollment drives are being conducted to attract more and more students in government schools and also ensure that no child remains out of school.
for the benefit of students in remote areas and students belonging to migratory population, 1,859 seasonal centers are being run across Jammu and Kashmir. Due to these initiatives, the students in government schools have been doing very well as reflected in the board exams. During last year examinations, most of the 10 positions in all the streams have been achieved by students of government schools. اس پہ کچھ نہیں کہیں گے. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی پوزیشن ہولڈر نکلتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے نکلتے ہیں. Even in professional competitive exams, the pass out of government schools have done very well. For capacity building of teachers, diets are being upgraded and made as centers of excellence. Besides, the teachers are being deputed to obtain training in various centers at national level. Honorable Sir, most of members who spoke about education have highlighted the need of fulfilling the vacant positions at various levels. I want to apprise the House that a number of steps have been taken to fulfill the vacant posts under district and promotion quota. 22 principals promoted as COs, 122 lecturers promoted as principals, 80 headmasters promoted as ZADIOs, 571 masters as headmasters, for which orders being issued shortly, 1785 teachers promoted as masters, 2000 vacant posts of lecturers in promotion quota are being filled up shortly. 594 posts of plus 2 lecturers have been referred to Jammu Kashmir Public Service Commission for selection in time-bound manner. For encouraging female literacy among SC/ST population, 89 kg BVS have been made operational. Besides, 85 girls hostels have been sanctioned in educationally backward blocks. Under Beti Anmol scheme, more than 12,000 BPL girl students have covered, for which an amount of ₹7 crore was. ممبر اسمبلی عیدگاہ مبارک گل آج گرانٹ کس بحثس دوران ایوانس مز سرکارس مانگ کرم تعلیم ہندس نصابس حوالہ گژھِ اخ کمیٹی تشکیل دن یت زن نصابس مز شامل کتابن ہز سام ہینہ یل زن تمو سرکارس مانگ کر جموں کشمیر مز نقلی دوا میڈیکل شاپن پہ فروخت کرنے تو یمن دوا سازن خلاف گژھِ سخت کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ یِنۍ یُتھ زن امہ وبا نش لوکن راحت واتہِ. یہ دوسرے جہاں تک یہ کتابیں بھی آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے کتابیں اچھی ٹیکسٹ بک، لیکن ٹیکسٹ بک میں آپ کو ایک ہائی لیول پاور کمیٹی بنانی پڑے گی کہ جس میں وہ دیکھیں گے صرف ایسی بات نہ آئے جسے ہمیں فرق پرستی کا رجحان ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جسے ہمارے یہ دل مجروح ہو جائیں. ایک ایکسپرٹ کر جو ہمارے پرانے وائس چانسلر ہے، پرانے جو پڑھے لکھے ہیں بہت سارے ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنا کے وہ دیکھیں گے کہ آپ کے اس سلیبس میں کیا رکھا گیا ہمارے فیوچر کے لیے. یہ پہ آ جاؤں میں کاٹ رہا ہوں سر ہر سیکٹر میں جناب، جہاں تک کہ ہر سیکٹر ہر فار آل شفیع صاحب کا نعرہ یہ بھی اچھا ہے کہ ہر ایک کو حل ہونا چاہیے، لیکن میڈیسن ہی نہیں کرے گا جب تک آپ اویئر کرو گے. اویئرنیس مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ بیماری ہوتی ہے کینسر کی یا کڈنی فیلئر ہوتا ہے یا فیٹی لیور فیلئر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جامعہ پروگرام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بنانا پڑے گا. ہر گلی میں ہر تحصیل میں اویئرنیس نہ ہو، بھائی یہ چیز خراب ہے یہ مت کھاؤ، یہ چیزیں اس پر یہ کرو، تب یہ ورنہ یہاں جموں کشمیر میں اتنے میڈیسن سپلائی ہوتے ہیں کوئی ہندوستان میں کسی شہر میں اتنے نہیں ہے، اور وہ سب سلنڈر ہیں. اگر آپ دیکھیں گے دلی میں آپ میرے ساتھ آئیے کبھی آپ جائیں گے، وہاں کا آپ ایسولاک دیکھیں، وہاں کا آپ پینٹاپ دیکھیں، آپ کا وہاں کے اینٹی بایوٹک دیکھیں، اس کا شیپ بھی الگ ہے. جو یہاں کے جو میڈیسن ہے وہ کھاتے اگر کینسر کا انجیکشن بھی ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے، وہ بھی کینسر کا پیشنٹ مر جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے جو یہ ڈرگس کے حوالے سے سخت پالیسی بنائے. جس دکاندار پہ یہ سبسڈائزڈ میڈیسن ہوگا، جس دکان پر یہ غلط میڈیسن ہوگا، وہاں کے کوشش کریں گے اس دکان کی لائسنس ضبط کرے، اور ان کے لیے بڑے سزائیں ہونی چاہیے سخت.
ताकि वो उनको याद रहे कि जम्मू कश्मीर में लोगों से खिलवाड़ करने के लिए ये नहीं है कि वो यहाँ पे सिर्फ नकली दवा भेजें। और जहां तक मैं इनके लिए इसके मुबारकबाद देता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का कि इन्होंने इस सेक्टर में मुझे मौका नहीं मिला ग्रांट्स में। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तैरगम तलीम मामलस ऐवानस मज वतलव सरकार मांग कर्म अत कुन गि खास जोन दिन यून यल जन तमो अमे हवाले कत करान वोन बच्चन मयारी तो बेहतर तलीम फराहम करनस हवाले गि सरकार सठा संजीदा सपदन युत जन बच्चन हुंद मुस्तकबिल ताबनाक बनाने यी। एजुकेशन एक प्रायोरिटी एरिया है हमारे समाज के लिए, हर समाज के लिए। हर बच्चा तालीम की रोशनी से आरास्ता हो, तालीम उसको मिले, तब जाकर वो अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है, बेहतर बना सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज के दौर में अभी एजुकेशन में बड़े रईस लोग घुस गए हैं, बड़े अमीर लोग, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग घुस गए हैं और बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस बन रहे हैं, हर सतह पर स्कूल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फ़ीस ले रहे हैं। तो लाजमी तौर पर इसका नतीजा यही होगा कि एजुकेशन सेक्टर अब एक मंडी बनी है नफ़ा कमाने के लिए, तालीम देने के लिए नहीं। क्योंकि आम लोग, चाहे वो मज़दूर का बेटा हो, किसान का, ताजर का बेटा हो, जर्नलिस्ट का हो, मिडिल क्लास का हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी ज़्यादा फ़ीस ताकि वो भी बड़े स्कूलों में जा सकें। तो इसलिए मैंने कल ज़ोर देकर कहा कि इस सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो एजुकेशन को और हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी एरिया समझकर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उनको वाइब्रेंट बनाने के लिए कदम उठाए, उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो विद इन द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा किया जाना चाहिए। अगर देर कर लेंगे इसका नुकसान रहेगा समाज के लिए, आम लोगों के लिए। सर बीजेपी के सरकारी स्कूल की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता भी है। मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद न्यायकन आज असेंबली मज फ्रूट मंडी नवदल शहर पर मामल वतलावान सरकार मांग कर्म अमे मंडी हज शहर पर करनस हवाले गन कदम तुलने यीन युत जन अत सत वबस्त लूकन राहत वाते। यल जन वजीर मौसूफन ऐवान जान दिवान वोन अमे हवाले कदम तुलने आमत तो अनकरीब ये अमे शहर पर करने। 2-4 साल से वहाँ पे मिले हैं। इसकी हालत त्राल नवदल एक जगह है, वहाँ पे न सिर्फ त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी के आधा पुलवामा का, आधा बीजवारा होगा, पापों का फ्रूट आता है। उस मंडी में इतनी हालत खराब है कि जब वर्किंग डिपार्टमेंट को कहते हैं कि इसका मेंटेनेंस करें, वो कहते हैं इसका ऑर्डर नहीं हुआ ट्रांसफर। इस सिलसिले में जब मैं इलेक्शन जीता तो मैं एज MLA गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इसका टेकअप मैटर में। वो कह के हमने कागज भेजे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर या डिवीजन के, लेकिन 1 साल से कागज वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। बराए मेहरबानी करके इसका ट्रांसफर लैंड जल्दी हो ताकि इसकी तरक्की के लिए जहाँ वो फटे वहाँ बने। अब वहाँ ट्रैक्टर वाले होते हैं जनाब, ट्रक अंदर नहीं जा सकते, इसलिए उसका कैरेज फिर हेड लोड जाकर उससे नुकसान होता है जो करने में। मेरी गुजारिश है कि ऐसा इसी साल मैंने डेट मांगा था जनाब से, तो डेट नहीं मिला, हिसाब कर रहे हैं मंडी। ब्यूरो बडगमस में आज हार्टिकल्चर महकम तरफ आत्मा स्कीम तहत प्रोग्राम सांस करना आमत यथ महकम के जिम्मेदारों तो माहिरों अलाव मुकामी बाग वालों शिरकत कर। अत मौके पर ये तकरीब मज मौजूद लूकन मुतारिफ करना आमच स्कीम हवाले जान दिन आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथन प्रोग्रामन हुंद सांस रोज ब्रोह कुन जारी युत जन बाग वालन ज्यादा खोत ज्यादा फायदा वाते। एक आउटरीच प्रोग्राम था, हमारी जो आत्मा स्कीम होती है उसके अंडर ये एक आउटरीच प्रोग्राम था। यहाँ हमने कोशिश की कि हम पूरी एक्सपर्ट्स की टीम जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सब को लेके हम यहाँ आए ताकि हम लोगों के यहाँ डोर स्टेप पे इनको हमने यहाँ जमा किया था। हर जोन से जो इस साइड नजदीक पड़ते हैं, जैसे इसमें खाग है, आरिजाल है, नारबल है, मागाम है, बीरवा है, ये इनवाइट इनको यहाँ बुलाया हमने ताकि इनको स्कीम्स का हम पूरा नो हाउ दे दे, अवेयरनेस दे दे कि ये कैसे स्कीम्स का अवेल कर सकते हैं बेनिफिट। प्लस जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं इसमें इनको कौन सी तदाबीर इस्तेमाल करनी है अपने फार्म में,
कौन सी टेक्निक्स करनी है ताकि इनका जो है प्रोडक्शन मैक्सिमम रहे और नुकसान कम से कम हो। इनके एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम था, आप इनसे भी पूछ सकते हैं जो हमारे आज जिन्होंने भी अटेंड किया, ये हमें बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल लगा कि इन्होंने काफी ताउन किया हमारे साथ और शेयरिंग ऑफ नॉलेज काफी हुआ और ये वापस जाके 10 लोगों को आगे और अवेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर होगा, हम ऐसे ही प्रोग्राम छोटे छोटे ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे करने का पूरा हमने एक प्रोग्राम बनाया है, जिसका शेड्यूल हम अगले महीने निकालेंगे। करने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे इनको पता लगे, सारे ऑर्चिडिस्ट को, सारे बागबान भाइयों को, कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उनके लिए उन्होंने क्या क्या ऑपरेशंस कौन से टाइम पे करने हैं ताकि मैक्सिमम उनके बेनिफिट्स आ जाएं और नुकसान कम से कम रहे। मेरी जिंदगी हूं तजुर्बे अगर जवान वथि पन रोजगार तलाश कर, यह जबरदस्त हो रोजगार पन तलाश कर, पान से 10 नफर पकन हिसाब बह पान गोस खड़ा, बहुत वनकस तकरीबन 15 नफर चलावान, मे नर्सरी खड़ा कर, इथे पे अगर कह बाग कर खड़ा, सो कि अगर अकुई कनाल अकुई कनाल तमिस स्पेशल पानस रोजगार, तमिस दोयम रोजगार छाड़ने जरूरत कह, तमिस मजूर नेरने जरूरत कह, सो तमे मज रॉपिस 2-2.5 लाख कड़ित वरियस, ये मजूर पे रॉपिस लाख मुश्किल वरियस अनान, लाख तस मुश्किल नहीं बनान, पजन मे बासान कम से कम रेतस मज एवरेज कम कर, यह तकरीबन गसान मे बासान 6 रेत या 2 रेत या 4 रेत, यह रेतस मज अद लूक गसान खबरदार यमो कथो काम करने खातिर। अवेयरनेस प्रोग्राम क्या है, ऐसे और एक होने चाहिए हर एक ब्लॉक में, क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि जो स्प्रे कर रहे हैं वो बागों में, वो एक साथ हर एक जो एक एरिया है उस एरिया के जो भी बाग है उनका एक साथ होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जो जब एक ब्लॉक में इनका कंट्रोल हो सके। फॉर एग्जाम्पल वो एक व्हाट्सएप ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करे जिसमें वो एडवाइजरी ये करे, एडवाइजरी वायरल करे कि आज इस एरिया को स्प्रे कर रहा है। और दूसरा चीज जो भी है अवेयरनेस प्रोग्राम था, दिस वाज ओनली फॉर द ग्रोवर्स, मगर जो ग्रोवर है वो नर्सरी जो प्लांट्स अपने बाग के लिए वो नर्सरी से लेता है, और नर्सरी के लिए उनका कोई प्रोग्राम नहीं होता है, वो नर्सरी के लिए और एक प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम दैट विल बी मोर बेनिफिट देन दिस प्रोग्राम फॉर द ग्रोवर्स। एंड प्रूनिंग के लिए जो हमारे प्रूवर आ रहे हैं तुम तुलान ठेल यथ पन चीज तुम तुलान करान प्रूनिंग, उसके लिए एक अथोराइज सर्टिफिकेट हर एक प्रूनर को मिलनी चाहिए कि ये क्वालिफाइड प्रूनर है, यही प्रूनिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्रालस में आज फजीलियत रमजान हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज कॉलेज इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पर यह तलब इल्मो तरफ करात नात खनी करना आई, यल जिम्मेदारों तरफ वन आव ज वक्त जरूरत मुरवजा तलीम फराम करने सत यह तलब इल्मन दीनी तो इखलाकी तलीम फराम करने युत जन पायदार समाज तैयार करनस मज आसानी सपदे। ये फजीलत रमज़ान और सीरतुन नबी के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया इंटर कॉलेज। इसमें डिफरेंट कॉलेज से तलबा ने पार्टिसिपेट किया। ये एक्चुअली सीरत के प्रोग्राम को, सीरत के पैगाम को आम करना है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इस माशरे में, इस दौर में लोगों में उनकी तालीमात को उजागर करना, इसी हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ताकि बच्चों में जो इखलाकी और रूहानी जो अपलिफ्टमेंट हो जाए। इसी हवाले से ये प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया। तो सर ये डिफरेंट जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के डिफरेंट कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स है, उन्हीं के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बीज बिहाड़ा से भी, हाँ बीज बिहाड़ा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीज बिहाड़ा से भी बच्चे आए हैं, तो हायर सेकेंडरी से भी बच्चे आए हैं, पुलवामा कॉलेज से, अवंतीपुरा कॉलेज से, पामपुर कॉलेज से बच्चे आए हैं। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उनमें जो बेहतरीन नातगो हैं, स्पीच में जिनने टॉप किया और उसमें क्रिकेट कंपटीशन में उनको हमने इनामात से नवाजा, कैश प्राइज़ दे दिया, और बाकी सब बच्चों में हमने खजूरें बांट दी। ये रमज़ान का महीना है, सब बच्चों में हमने खजूरें भी बांट दी। वादी कशीर मज ये पतमन कैसा रेतन दौरान नारवादातन मज इजाफ सपदन सत कई रिहायशी ढांच आज ताम खस्तर सपद तत आज सुबह वड्डी पूरा मार्केटस मज नारवादात पेश आमत। यथ दौरान कई दुकान नुकसान सपुद। वन शुमाली कशीर हंदिस वड्डी पूरा मैन मार्केटस मज आज सुबह अक दुकान मज अचानक नार ज़ाहिर सपुदमुत, यम किस जदस मज
मजीद के दुकान हना ये मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार वारदात मज कईयान दुकान नुकसान सपदमुत ये जन मुतसर दुकानदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आई तिमन गि इमदाद कर जन तिमन दो गुजार मुश्किल सपदे। नुकसान तो यहाँ जो कल भी 12 बजे यहाँ आग लगी मलिक महला गोरियाकल में, लेकिन फायर सर्विस का इतना शुक्रगुजार हूँ मैं क्योंकि मैं भी फायर सर्विस में रहा हूँ, इस वक्त मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन वो बर वक्त आए और लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि यहाँ के लोग बहुत बाशूर हैं जिन्होंने बिल्कुल आराम से फायर सर्विस अमले को काम करने दिया। ये वजह कन ये नार बिल्कुल असल पे कंट्रोल गो। अगर लूख यन बाकन जायन करान लूख अड़ निवान पाइप मुदाखलत करान मज काम मज नतीज नान तेल वनस बह ये लूकन ना रिक्वेस्ट करान ये हसा यूथ कह इंसिडेंट आ खुदा न करे तजो फायर। आज माह मुबारक के महीने में लोगों के जायदाद का नुकसान होना काफ़ी तकलीफ दह बात है। आज सुबह मार्केट में मैं चल रहा था तो करीबन 10 बजे के आसपास मैंने आग देखी, तो मैंने तुरंत फायर एंड एमरजेंसी जजलडारा और हनवारा को भी कॉल की और जजलडारा फायर स्टेशन 5 मिनट में बड़ीपुरा मार्केट में पहुंच गई। इसलिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और फायर एंड एमरजेंसी के एहलकारों का लाख लाख शुक्र है कि वो टाइम पे आए और बर वक्त कार्रवाई की, लोगों के और नुकसान होने से बचा लिया। आई कैन से तकरीबन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोलूँ मैं तो इन बड़ी कंस्ट्रक्शन है जिसमें तकरीबन 8 दुकानें हैं और एक रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल हो रही है। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर में एहतजाज मुजाहिर करना आमत या दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत योदवे तिमन सत आज तम कईया वाद करना आये ताहम कह वाद पूरा करना आमुत यम किन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपदन। एहतजाज में शामिल लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमत तिहद जायज मुतालबा पूरा करने हवाले गन कदम तुलन yin युत जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। तो आज हम इस मौसम में इस ऐसे ठंड में ऐसे बारिश में फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर न होते, क्योंकि बार बार हमने सरकार से यही इल्तिजा किया है कि हमारे जितने भी जेन्युइन डिमांड्स है वो फुलफिल किया जाए और हमारे जो हुकूक है वो हमें दिया जाए। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 वो मतलब उसको लागू किया जाए और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। हमारा जो मंथली पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो तकरीबन कितना बड़ा तबका है आपका, कितने लोग हैं जो इस वक्त इसमें मुलवस है, जो चाहते हैं कि उनके हुकूक मिल जाए? देखिए सर, हम जो मतलब 2016 से पहले हमारे 7 कैटेगरियां थी, जिस वक्त तक हमारे 3.5 लाख लोगों की मतलब वो पॉपुलेशन थी। अब 2016 के बाद 21 कैटेगरियां बनाई गई है। कम से कम इस वक्त हमारा तो तादाद जम्मू कश्मीर में 10 लाख लोग हैं। तो क्या इस वक्त आपके बेसिक हुकूक है जो आप चाहते हैं जल्द से जल्द हल हो जाए? देखिए सर, हमारा सबसे पहले यही मसला है कि हमारे जो मतलब पेंशन का मसला है तो वो बढ़ाया जाए और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं इस वक्त एवरेज होने के मतलब कंधार पर है तो उनको रोजगार दिया जाए। और जो मंथली मतलब जिस तरीके से मतलब बहुत सारे मतलब जैसे बिजली है, पानी है, राशन है या मतलब जो मतलब लोन है वो हमें प्रोवाइड किया जाए और डिसेबिलिटी एक्ट को यहाँ लागू किया जाए ताकि हमें मतलब उनके उस तरीके से मतलब उनके बेनिफिट्स मिल जाए। तो वो तो नाज़रीन इस वक्त कोशर खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।